السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم اپنا سپارہ پہلا ہے اور سورۃ البقرہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کا آخری رکوع ہمارا چل رہا ہے، آیت نمبر 136۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الرحمن علم القرآن آمین ثم آمین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ جہاں پہ پس پھر ان اگر آمانو وہ ایمان لائیں، یعنی وہ سب ایمان لائیں، آمنا اور واو الف جمع کا وہ سب ایمان لائیں، بھی مانند کی طرح، مثلی چیز، مثال مثلی مثال، ما جو، اس جیسی چیز پر یا اس جیسی پر جو آمن تم ایمان لائے، آمن اور تم اکٹھے کر دیے گئے، آمن تم، یہ تم اشارے کے لیے آتا ہے، تمہاری طرف، تم، ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا اشارہ، میں، وہ، جی سارے، تو آمن تم ایمان لائے، تم بھی تم کا تم ہی ہے، بھی ساتھ ہی جس، تو اس پر یا جس پر، اس پر جو یا جس پر، فقد اہتدوا، فا تو، پس پھر، جو بھی اس کا ترجمہ کر سکے، تین ہے، فقد یقیناً، قد یقیناً، اہتدوا ہدایت پائی، وہ ہدایت پا گئے۔ اہتدوا میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ حمزۃ الوصل جب آتا ہے تو وہ اپنے تیسرے حرف پر، تیسرے حرف کی حرکت کو لیتا ہے۔ حمزۃ الوصل کس کی حرکت کو قبول کرتا ہے؟ تیسرے کی، کیونکہ دوسرے کے اوپر تو جزم ہوتی ہے نا، اگر جزم والا پڑھ سکتے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی حمزۃ الوصل کی۔ کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ پہلا حرف ہی جو ہے جزم والا تھا، تو حمزۃ الوصل آیا ہے مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پہلا ہی نہیں اپنی کوئی آواز نکال سکتا تھا، اسے جوڑنے کی ضرورت ہے، اگر تو جوڑیں تو فقدہ تد فقدہ دہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو اہتدوا علیحدہ پڑھتے ہیں تو اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے، وا اور ان اگر تولوا پھر جائیں، فانما تو یقیناً ہم وہ، فی شقاق مخالفت میں ہیں، شک میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا پس سا ان قریب، یعنی جلدی ہی، یکفی کافی ہو جائے گا انہیں، کا یعنی کافی ہو جائے گا کا آپ کو، ہم ان پر، ان سے یا ان کے مقابلے میں، پس اچانک چنانچہ ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے، اللہ کون قریب ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اللہ ان قریب کافی ہو جائے گا
आपको कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह ताला का अनकरीब ही आपको काफ़ी हो जाएगा, पता चल जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा। वह हुआ, और वो अस्समीउ, सब कुछ सुनने वाला है, पूरी ताकत के साथ कंट्रोल करने वाला है। सुनने वाला है, पूरी ताकत के साथ सुनने वाला, यानी हर शय, कोई हर बात अगर हम कहते हैं, बिल्कुल आपने कई दफा दिमाग, ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बात चल रही होती है, दिल में चल रही होती है, और वो बात जो है अल्लाह ताला को पता है कि क्या चल रहा है। किसी के खिलाफ प्लान चल रहा है तब भी पता है, वो आने वाली अभी होती है जहन में, तो वो पहले भी अल्लाह को उसका पता होता है, क्योंकि उसने तो लौहे महफूज में लिख छोड़ी ना। असमीउ, सब कुछ सुनने वाला है, अल्लाह का नाम सिफाती नाम है। अल आलीम भी अल्लाह का सिफाती नाम है। अल आलीम, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। सिबगतल्लाह, सिबगा रंग, अल्लाह अल्लाह का, रंग अल्लाह का। वमन, और कौन, अहसनु, ज्यादा अच्छा है, मिन से, अल्लाह ही, अल्लाह, अल्लाह से, सिबगतन, रंग में, व नहनु, और हम, लहू, उसके लिए, आबिदुन, इबादत करने वाले हैं, या हम उसी की इबादत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फिर अगर वो उस जैसी चीज पर ईमान लाए जिस पर तुम ईमान लाए हो, यानी कि तुम सब सहाबा इकराम, क्योंकि ये जमा में आया है ना, तो तुम सब जो जिस पर ईमान लाए हो वो, तो यकीनन वो हदायत पा गए। हदायत की कसौटी ये है। और अगर वो फिर जाएं, ये ना माने, जे वल्लऊ, वल्ला, वल्ली होता है, एम, वल्लू होता है फिर जाना एड़ियों के बल। एड़ियों के ऊपर जब खड़ा हो ना इंसान, पूरे पंजे पूरे ना लगाए हुए पाँव, तो क्या होता है, एड़ियों के ऊपर खड़े होके देखें कितनी जल्दी आप घूम सकते हैं। पीछे की तरफ रुख करना हो तो ऐसे घूम के वापस दूसरी साइड पे चले जाएंगे। पाँव पे चलना हो तो आप टाइम लगाएंगे। तो जैसे वो आए वैसे ही वो फौरन पलट गए, कोई टाइम नहीं लगाया उन्होंने, इतनी जल्दी वो फिर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो और अगर वो फिर जाएं तो यकीनन अब वो मुखालफत में है, चनाचे अनकरीब इनसे अल्लाह ताला आपको काफ़ी हो जाएगा, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो ये अल्लाह ताला की दो सिफात इसमें आई हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे है सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह ताला का। रंग अल्लाह ताला का क्या मतलब है, अहसनु, मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग चढ़ना क्या है, कोई जर्द रंग या पीला रंग या लाल रंग तो नहीं है ना। क्या है अल्लाह का रंग, अल्लाह की वो जो अहकामात है उनमें इतना रंगा जाए इंसान कि उससे दूसरों की परवाह ना रहे, कि दूसरे क्या कहते हैं उसे ब्लेम देते हैं, उसे गालियां निकालते हैं या क्या करते हैं। उससे एक ही हो कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरे रब का दीन बुलंद हो जाए, मेरे रब के दीन का झंडा बुलंद हो जाए, और मेरे रब का जी हुक्म है, मैंने मानना ही मानना है। तो वो हर वक्त रब की याद में ही जीता है, रब की यादों में ही जीता है। कभी किसी माँ का बेटा दूर गया हो तो क्या होता है, जब बेटी दूर गई हो, खास कर वो अकेला ही हो, एक ही हो, तो क्या हाल होता है उनका ना, कैसे वो उसकी यादों में ही जीते होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे उस बच्चे की यादों में ही माँ बाप जी रहा है, सांसें उसकी यादों में ही आ रही हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला का रंग बंदे पर ऐसा चढ़ जाना कि बंदा जो है हर वक्त अल्लाह सुबहाना ताला के ही बारे में सोचता रहे। अल्लाह हमें भी ऐसा रंग दे दे अपना।
वमन और कौन अहसानु ज्यादा अच्छा है मिन अल्लाह अल्लाह ताला से सिबगतन रंग में, अल्लाह से रंग में रंगने में कोई मुकाबला नहीं है किसी का। क्यों? सब रंगों से ज्यादा अच्छा रंग किसका है? अल्लाह का रंग। जिसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है ना, उसको कोई और रंग जो है नुकसान नहीं देता। जैसे अब काला कपड़ा है, उसको जितने मर्जी रंग उतरते कपड़ों में धो लें, क्या होगा उसको? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी नहीं। नहीं फर्क पड़ेगा। अगर उसके मुकाबले में कोई हल्के रंग का कपड़ा या सफेद ही डाल दें, उन पे रंग लग जाए। और सारे कपड़े जो रंग उतरने वाले हैं उनको उनको बीच में डाल दें, क्या होगा? वो सारा रंग बिरंगा हो जाएगा। वो हरे का रंग ले लेगा, हाँ जी। लाल पीला सब कुछ हो जाएगा, हरे का रंग ले लेगा। तो यही हाल है हम इंसानों का भी। हम जिधर की सुनते हैं, जिनमें बैठते हैं, उन्हीं का रंग अपना लेते हैं। हालांकि हमें क्या होना चाहिए? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाना चाहिए कि कोई और रंग काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के नज़दीक, जब तक के क्या ना हो, इंसान अल्लाह के रंग में रंग न जाए, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से मना हो जाए, और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से वो फ़ायदा उठाए पूरा पूरा। अल्लाह की हदूद को वो पार करने वाला ना हो, अल्लाह की रज़ा वाले काम करने वाला हो, जो काम अल्लाह की नाराज़गी वाले हों उनसे बचने वाला हो। तो ये सारे क्या है? सिबगत अल्लाह के ही रंग हैं। और इतना पक्का रंग हम कहते हैं ये परमानेंट रंग है। कहते हैं परमानेंट रंग, यानी कि ये पक्का रंग है, उतरने वाला नहीं है। और एक रंग होता है, कहते हैं जी इस कपड़े का रंग तो उतरता ही रहता है, जितनी बार धोए उतरता ही है। तो ये फिर पक्का रंग को क्या है? पक्के रंग को आप जितना मर्जी धोते रहें दूसरे कपड़ों में, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसको, ना दूसरों को, यानी दूसरों को नुकसान भी नहीं देगा वो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का रंग, और अल्लाह ताला फरमाते हैं, सवाल लगा करके आगे बता रहे हैं, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह ताला से रंग में, यानी कि किसी और का रंग भी है आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो सोच लें। अगर यानी कि अगर चढ़ा हुआ है तो फिर उसे उतारने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पे इंसान आता है, बैठता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और फिर घर जाता है तो फिर रस्म और रिवाज के और घर वालों के रंग ले लेता है। ऐसे ही हमें जिधर कभी कभी भी हूँ, हम कह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसा कुन्तु, जहाँ कुन्तु ही है, कुन्तुम या कुन्तु है, वहाँ पे अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जहाँ कहीं भी तुम हो, यानी कि जिधर भी हो अल्लाह का डर इख्तियार करो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह ने हिसाब किताब देना है, अल्लाह के आगे कटहरे में ख़त्म होना है। तो अकेले में भी फिर इंसान गुनाह नहीं करेगा। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रंगों में बेहतरीन रंग कौन सा है? जो अल्लाह का रंग है। अल्लाह हमें भी अपने रंग में रंग दे कि कभी कोई और रंग ना हमारे ऊपर आए, हम कोई और रंग कबूल ही ना करें, अल्लाह के रंग में रंग जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने रंग में रंग ले। वनहनु लहू आबिदून, वनहनु और लहू उसी के लिए है, आबिदून इबादत करने वाले। अब कैसा लगा अल्लाह ताला का रंग? समझ आई कुछ? रंग वो ही नहीं है जो हम चढ़ाते हैं कपड़ों को और नजर आते हैं हम। क्या है रंग? इसका मतलब अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह के साथ रिश्ता है, जोड़ना, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना। वो रब, वो आका, मैं गुलाम, वो रब और मैं बंदी, यानी कि उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है।
कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम व नहनु लहू मुखलिसून। कुल आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहाज्जूना क्या तू तुम, अब तू तुम का कैसे हो गया, वाओ के आगे एक अलिफ था, वाओ के आगे आगे क्या था, एक अलिफ था, क्या होगा, अतु हाजू हाजू। अब ना जो है, क्योंकि कई दफा हाजूना हम अलिफ वाले काफी पढ़ चुके हैं ना, जहां पे क्या है वाओ और नून था, वाओ और नून। अब तीसरा एक दूसरा नून कैसे आ गया, जे नून जो है ये एक ज़मीर है, हम अपने लिए बोलने वाले कह सकता है मैं आई, यानी हमजा जो है आ, और आतईन मैंने बताए हुए ना हम सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें क्या तुम झगड़ा करते हो हम सब से, यानी हमसे, फी में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के बारे में। अब के कैसे आया, मैंने बताया हुआ आपको कि अगर अल्लाहू होगा तो तर्जमा क्या किया कि अल्लाह ने वो काम किया। अगर अब जहां पे क्या है ही आया है तो ये के की मायनों में का के की कु, तो अल्लाह के बारे में क्या करेगा, वह हुआ और वो झगड़ा करेगा ना। हुज्जत पेश करना, हम कहते हैं हुज्जत पेश करना क्या करता है, झगड़ा करना होता है ना, झगड़ना वाला अल्लाह के बारे में। अस्तगफिरुल्लाह, आज भी लोग करते हैं झगड़े, अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं लोग, आज भी झगड़ रहे हैं, ठीक है। वाह और हुआ वही, वाह और हुआ वही, ये हुआ जो है ना ये भी हु की तरह ही है, मतलब वही है, लेकिन ये जुड़ के नहीं आया, ठीक है। ये अपने आप में खुद आ गया है बताने के लिए कि वही और वही रब्बुना, हमारा रब खास है ना, जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का जिक्र है, वही रब्बुना रब है हमारा, वालाकुम वा रब्बुकुम, रब्बुना रब हमारा, ना हमारा, वा और रब्बु रब, कुम तुम सबका, तुम्हारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप कह दें कि क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब और तुम्हारा रब है। रब तो एक ही है, तो झगड़ा किस बात का फिर, है ना। झगड़ा तो वो होता है ना जहाँ पे कोई कोई बात कह रहा है, कोई दूसरी कह रहा है, जहाँ के कोई एक को मान रहा है, कोई एक से सौदा ले रहा है, कोई दूसरे से ले रहा है, तो जहाँ पे कोई झगड़े की गुंजाइश ही ना हो उसमें भी इंसान झगड़ा रखे तो क्या होता है फिर, हम्म, बहसों मुबाहिसे में पड़ता है ना फिर। तो जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैगंबर भेजे हैं उनका काम क्या है, तबलीग करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी जिम्मेदारी है तबलीग करने की, इस पैगाम को पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो, किसी को पता हो। अल्लाह की बाजी, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं कि तुम अल्लाह ताला के बारे में कहते हो, हालांकि वही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी तो है, यानी कि उनको भी दावत दे दी साथ में कि तुम्हारा अगर मेरा हमारा रब वो है तो तुम्हारा रब भी तो वही है ना। वालाना और हमारे लिए आमालुना अमाल हमारे, वलाकुम और तुम्हारे लिए आमालुकुम माल तुम्हारे, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। कहाँ पे बांटते हैं हम? ये सूरत है एक पिछले सिपारे में, सूरत काफिरून, सूरत काफिरून उसमें भी है, कहते हैं इन्हें लकुम दीनुकुम, वहां पे दीन की बात आती, जहाँ पे अमाल की बात आई है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि हमारे अमाल हमारे हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, जो तुम गलत कर रहे हो हमसे नहीं पूछा जाएगा, और जो हम ठीक कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए आखिरत के दिन। वहां पे तो अमाल चाहिए होंगे ना, दूसरों के भी चाहिए होंगे और दूसरे भाग जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में इकट्ठे हुए और अल्लाह के रास्ते में सेपरेट हुए, यानी कि जुदा हुए, तो वो क़यामत वाले दिन भी वो दोस्तियां काम आएंगी जो नेक सालिह साथी हैं। नेक सालिह किसी को इंसान बना ले साथी, और क्या हम अपने अमाल को साथी बनाएंगे? अमाल भी तो हमारे साथ जाएंगे ना, उनको साथी बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए बाजी, बनाना उसके चाहिए, हमारे अमाल ही तो साथ जाएंगे। साथ क्या जाएंगे तो। माल जाएगा साथ में? माल नहीं जी, नहीं जी। तो कफन किस चीज का होता है? कपड़े का। तो कपड़ा माल ही तो है। बस वो तो बाजी हम खाते हैं ना। तो वो कब्र में रह जाएगा ऐसे, कब्र में, हाँ जी। कब्र में रह जाएगा। हम्म, और फिर ये है, तो घर वाले तो बिल्कुल ही साथ नहीं जाएंगे। वो तो नहीं अच्छे जी, से नहीं अच्छा इंसान, इतना प्यारा हो कोई जी ना सकता है उसके बगैर, तो फिर भी उसको दफनाएंगे, जी। कोई फौरन रखेंगे फौरन कहते हैं कि फौरन जल्दी कर दो। फौरन हाँ क्या जी। देंगे। तो इसलिए किसी एक पर्सन के अमाल जो है वो किसी दूसरे पर्सन को मुंतकिल नहीं नहीं होंगे। होंगे। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, किसी एक की मेहनत दूसरों का फल नहीं देती, उसी जी, को उसकी मेहनत का फल देता है हाँ जी। अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमारे अमाल भी ठीक कर दे। तो ये एक दो टोक आयत है बिल्कुल काफिरों को समझाने के लिए कि उनका रवैया क्या होता है मुसलमानों के साथ, कैसे वो झगड़ते हैं, कैसे वो शोषी छोड़ते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अल्लाह सुब्हाना ताला हम मुसलमानों को भी होश दे और हमें पता हो कि हमने क्या करके जाना है दुनिया से, क्योंकि दुनिया पहले अब इतनी अल्लाह ताला ने दे दी है, और अब इंसान अगर बूढ़ा हो जाए तो ये तो नहीं है कि अब उसका वो सब कुछ साथ साथ ही रहेगा, लेकिन अमाल साथ रहते हैं, वो तो साथ ही रहेंगे ना। ना माल तो साथ ही जाता है। कैसे? वो इल्लीजीन में फरिश्ते लेके जाते हैं। कभी सुना है इसका? क़यामत की निशानियों में कौन लोग हैं? क़यामत की निशानियाँ ग्रुप जो हैं, वो सुन सकते हैं वहाँ से। तो अमाल जो है हमारे साथ जाएँगे, अच्छे हों या बुरे। माल जो है वो हमें कब्र तक छोड़ आएगा, जो हमारे घर वाले हैं वो कब्र तक छोड़ आएँगे। जाना जिसने साथ है, उसी को हम दुरुस्त नहीं कर पाते, अमाल को, जो हमारे काम आने हैं। वो भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं। अल्लाह की रहमत होगी तो वो अमाल भी काम आएँगे। एक तो नीयत हमेशा ही खालिस होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि इंसान दुआएँ करता रहे अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह
मुझे तू समझा दे, मेरी मदद तू कर दे, मेरा मददगार बन जाए। आगे है अल्लाह ताला फरमाते हैं वनहनु लहू मुखलिसून, हम तो अपने दीन को उसी के लिए खालिस करने वाले हैं, हम तो उसी को पुकारते हैं, उसी का तरीका अपनाते हैं जो अल्लाह ने तरीका दे दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। उस तरीके के अलावा हम नहीं कहीं भी जाते। किधर भी कोई किसी दरबार, किसी के बुत खाने, किसी के अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान तो बुत खाने में नहीं जाता, लेकिन उसने अपने अंदर के ही बुत कई बना रखे हैं। अपनी ख्वाहिशात का बुत है जो कि जीने ही नहीं देता, हर वक्त ख्वाहिशें करता ही रहता है। घर वालों की ख्वाहिशें खत्म होंगी तो नफ्स की शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कई दफ़ा हम रिलैक्सेशन के नाम पर ले रहे होते हैं वो टाइम जो कि हमें किसी और वक्त जगह के लिए रखना चाहिए था, किसी और इबादत के लिए रखना चाहिए था, किसी जगह काम जो भी कर सकते हूँ, क्योंकि कई दफ़ा जगह के कहीं जाना हो और अच्छी जगह पर क्लास ही है, क्लास के लिए जाना हो, किसी जगह पे ही है ना जाना, और आप बैठे रहें टीवी के आगे कि नहीं मुझे तो रिलैक्स होना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो नहीं उस जगह पे गए ना जहाँ पे जाने का हक था। और फिर ये है कि कोई काम नमाज़ पढ़ने वाली है, कोई बात नहीं, अभी टाइम बहुत है, मैं ये ड्रामा पूरा देख लूँ। देखते होते मुझे उम्मीद है कि अभी भी देखते होंगे। बाकी अच्छी मैंने कभी ड्रामा नहीं देखा, मैंने टेलीविजन ही नहीं देखा कभी। अच्छी अच्छी बात है। अच्छी उम्मीद ही मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, हैं? अल्लाह पहले सुब्हान देखते थे, पहले सब कुछ किया। अब अल्लाह ताला हाँ ने जी, बस हिदायत दे दे और अल्लाह हाँ ताला जी, दे रखे आखिरी टाइम तक, हाँ क्योंकि जी, आखिरी टाइम तक शैतान पीछे लगा हुआ है। साथ हाँ ही जी, वो तो आखिरी वक्त भी हर वक्त बहकाता है कि कहीं ये कलमा कुफर मुंह से निकाल दे बंदा जाते जाते दुनिया हाँ में। जी, हाँ जी। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको हिदायत अल्लाह अता ताला फरमाए। माफ करने वाला। हाँ, जो हो गया पीछे हो गया हाँ उसकी जी, भी अल्लाह से माफी, हाँ जी, है ना? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो हदीस है ना कि जो खताकार है बेहतरीन, जो गुनाहगार है कौन है, जो कि तौबा करने वाला हो। बेहतरीन खताकार वो है जो बेहतरीन तौबा करने वाला हो, कि हाँ अल्लाह जी, के आगे झुक जाए, अपनी खताओं को याद कर करके, अपने गुनाहों को याद कर करके, "ऐ अल्लाह मैंने फलां वक्त फलां भी गुनाह किया था, अल्लाह तू बख्श दे। ऐ अल्लाह मैंने ये किया, वो तू बख्श दे।" एक-एक गुनाह को हम कहीं बैठे अपने लिए टाइम निकालें, तो सोचा करें कि कौन-कौन से गुनाह किए हैं, अल्लाह तू बख्श दे, तू बख्शने वाला है। क्योंकि गुनाह तो हम सब ही करते हैं, कई दफ़ा हमें तो पता भी नहीं होता कितने गुनाह कर जाते हैं हम। किसी का दिल दुखा दिया, हमें पता भी नहीं चला। किसी का हक मार लिया, किसी हमें पता भी नहीं चला। अम या तक़ूलून, या तुम कहते हो इन्ना यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम वल अस्बात और औलाद। अस्बात सबत की जमा है, किसको कहते हैं? औलाद को। कानू वो सब थे, हूदन यहूदी औ या नसारा ईसाई। कुल कह दें, जहाँ तक देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं जा तुम कहते हो, वो अभी उन्हीं से अहले किताब से ही बात कर रहे हैं जो झगड़ा करते थे। क्या तुम कहते हो कि यकीनन तुम्हें पक्का यकीन है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक कौन है थे? ये कौन थे? जिनके नाम लिए जा रहे हैं, आप फ़ैमिलियर हैं इन नामों से ना? जी कौन बाजी थे? जी। पैगंबर थे इस्बात ना? दा मतलब आप पता चला क्योंकि औलादे है द इब्राहिम हज़रत इब्राहिम सारे क इसहाक बाकी सारे सब हज़रत पैगंबर हैं। इब्राहिम के 2 बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। और इसहाक के बेटे मैंने ये नहीं पता भाई हज़रत याकूब उनके वालिद से याकूब, यहाँ पे याकूब क्योंकि जब इसहाक की अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी थी ना, इसहाक की 2 फरिश्ते आए थे जी। उनके घर में, तो सारा अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में खुशखबरी दी थी इसहाक की, और साथ में ही पोते की भी दी थी। अच्छा ये उनका पोता था याकूब? याकूब इसहाक का बेटा था और हज़रत इब्राहिम इब्राहीम का अलैहिस्सलाम का पोता था, पोता। और हाँ, इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे थे। ये देखे तरतीब भी अल्लाह ने ऐसे ही दी है। हाँ जी।
इब्राहिम के बाद इसहाक का जिक्र इस्माइल का आया, क्योंकि इस्माइल बड़े भाई थे और इसहाक छोटे थे। और जब इसहाक की खबर किसको आई थी? सारा को आई थी, हाँ क्योंकि जी, सारा बेऔलाद थी ना। हाँ और जी, यही इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा जो थी, वो सारा की किसने दी थी? जब इराक से आते हुए रास्ते में एक बादशाह ने दिया था उनको तोहफे में, हाजरा को। जी बाजी जी, यही तो मैं देख कर आई हूँ। उधर से मैं उम्रा करके उधर आई से बाजी। मैं अभी उम्रा में ये सारी देखी है। यरूशलेम में गई थी ना, ये हजरत यरूशलेम। यरूशलेम, ये हजरत माइसायरा दी, हजरत इसहाक, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मैंने देखी। 4-5 साल हो गए। तीनों तीनों की तीन इकट्ठी तीनों उधर खबरें हैं, है ना, क्योंकि हजरत वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबरों की का लैदा है, इलाका था। हम्म। माइसायरा दी ते रकैया की और इसहाक की इकट्ठी है। रकैया कौन है? रकैया मेरा ख्याल बाजी इसहाक की बीवी है। इसहाक की बीवी थी सारा। सारा, फिर रकैया, रकैया की भी थी वहाँ, हजरत रकैया रकैया की। पता नहीं, मुझे रकैया का नहीं पता, लेकिन ये है जब कि मैं भूल गई हूँ तो पता नहीं बाजी। मैंने शायद 3 आप कब्रें किसी और अलहदा का थी नाम और ले हजरत रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अलहदा थी। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, इनकी उधर नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम होंगे उधर मक्के में। मक्का शरीफ में है ना। मक्के में है ना। कहते तो वो है जो मक्के खाने काबे के साथ वो जगह है ना, हलीम, कहते हैं कि वहाँ है हतीम। उनके हकीम। हतीम। हकीम, हाँ जी, हतीम। तो ये वल्लाहु आलम। तो हाँ ये जी, जो है ना, हाँ जी। इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा जो है, उनकी कब्रें वहां पे नहीं है, क्योंकि उनको तो जब वो पैदा ही हुए थे इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो वालदा को और उनको छोड़ दिया था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजी, ने। जब मैं सफा मरवा कर रही थी तो मैं यही सोच सोच कर रो रही थी। कि कितना उस माई सारा, माई हाजरा का क्या हाल होगा, हम कि वहां तुर एक रहे। इतना छोटा बच्चा है ना। उनकी यादें आनी चाहिए हमें उधर जाके, हाँ जी, आनी बहुत चाहिए। आई बाजी, बहुत आई। मैंने हम्म। आपको बताना था कि मैं जाने वाली हूँ, मेरा काम ही ऐसा था, मैं बताना नहीं था मुझे किसी को। हम्म। तो सुबहान अल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने क्या कुछ नहीं कहा अपने बच्चे के लिए। आप कभी सोच सकते हैं कि वहां पे क्या था? कुछ भी तो नहीं था। कुछ भी कोई, नहीं है था। ना, हम हाँ कहते जी, हैं इतना, हम कहते हैं हाय हम अकेले, हाय हम अकेले, हालांकि हाँ सारी जी, दुनिया हमारे आसपास होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो उधर क्या था? पानी पानी जो वो मशकीज़ें भी थोड़ा सा देगे, और खजूरें जो पास थी, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पहाड़ियां ही थी। पहाड़ियाँ थी बाजी, ना आपको पानी, पहाड़। उस पानी के अलावा जो वो छोड़ गए थे, हाँ जी, ना कोई खाना चारों तरफ, उस खाने, उस खजूरों के अलावा जो दे गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुछ भी नहीं। और क्या कहती हैं, इतने सब्र वाली हैं, क्या कहती हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे हैं, मुंह मोड़ के यानी कि पीछा किया और जाने लगे, छोड़ के खामोशी से। हमारी तरह तो ये सवाल और जवाब कर कर के हम थक जाते हैं। सबसे पहले तो वो घर से निकलते ही कहती, कहाँ छोड़ जा रहे हो हमारे, हाँ हमें लेके ना। जी, कुछ भी नहीं पूछा। और शीरखार बच्चा है जिसको लेके चल पड़ी है, और अभी तो दूध ही पीता है, कुछ भी नहीं खाता पीता। हाँ जी, तो इतना छोटा बच्चा है। और जब चलते हैं, आते हैं वहां पे छोड़ के जाने लगते हैं इस्माइल और हमारी वालदा हाजरा को। तो पूछती हैं, जब रुख कर लिया पीछे वापस जाने का, तो पूछती हैं कि हमें जहाँ पे किसके कहने पे छोड़ के जा रहे हो, किसके सहारे, किसके, हाँ जी, किसके है? सहारे। तो किसके कहने पर, हाँ जी, तो वो कहने लगे, वो उन्होंने कुछ नहीं बोले, बस चलते रहे। और फिर पूछा किसके कहने पर, किस जनी के जाहिर है कि पता ये भी था कि, क्योंकि आपको पता है इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी और भी थी पहले की, जो थी सारा। हाँ उन्होंने ही तो, उनसे औलाद नहीं थी, उन्होंने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हाजरा को दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि इनसे निकाह कर लो। औलाद के लिए ही दिया था, हाँ क्योंकि बांझ थी, हाँ जी, सारी उम्र बूढ़ी हो चुकी थी, बांझ थी माई। हाँ जी, तो लेकिन जब आने लगे, तो जाहिर है कि वापस जाने लगे, तो उनको हो सकता है इंसान को कि भी शायद बीवी के कहे पे छोड़ के जा रहे हैं, हमें जुदा करके जा रहे हैं।
तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी आमना वहाँ पे हाजरा को छोड़ा, तो दूसरी आवाज़ पे भी वो पूछती हैं कि किसके कहने पर छोड़ के जा रहे हो? तो वो नहीं बोले। तीसरी बार पूछती हैं, कहती हैं कि क्या अल्लाह का हुक्म है? हम्म, जी तो दादी। फिर उन्होंने अपनी हिला के, गर्दन हिला के बता दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने पता क्या कहा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा, फिर जी अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। इतना पक्का यकीन अल्लाह के ऊपर कि उन्हें पता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ज़ाया होने के पूरे इम्कान है कि जहाँ पे है क्या ज़ाया होने के अलावा, लेकिन कहती हैं फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। और उस वक़्त तो अल्लाह ताला का घर भी नज़र नहीं आ रहा था उन्हें, नहीं यानी जी, कि खाना कुछ काबा नहीं। भी मौजूद नहीं था, कुछ भी तो हम्म, नहीं था। खाना काबा भी तो बिल्कुल दीवारें ढह चुकी थी तूफ़ान नूह में, और बिल्कुल वो अंडरग्राउंड आ गया था, उसकी तो बुनियादें भी अंडरग्राउंड आ चुकी थी, ऊपर रेत आ गई थी सहरा की। तो इन हालात में वो छोड़ के जाती हैं, और इतने सब्र वाला घराना है अल्लाह ताला जिनका जिक्र जहाँ पे कर रहे हैं। और जहूद कहते थे कि क्योंकि अगर हम उसमें बहते गए तो बह जाएंगे फिर ना, तो हमें वो सब्र हाजरा का वाकई वहां पे नजर आता है, किस तरह वो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के, और वो उन पहाड़ियों के आज हम जाके देखते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता वो पहाड़ियां हैं, है ना। नहीं जी, इतना इतना सुकून सुकून। आरामदेह वो होता है सफर। लेकिन वहां पे पत्थर थे, वहां पे ऊपर नीचे की जगह थी, वहां पे सख्त जमीन थी, वहां पे तो सब कुछ तकलीफ दे था ना। बहुत तो दादी। वहां पे छोड़ के गए थे, और तपती धूप, क्योंकि सहरा जो है वो उनमें धूप होती जी है, बाजी, सर्दियां उनकी भी थोड़ी गर्मी सी होती धूप थी है तो हम इतनी धूप है ना। महसूस तो तपती धूप में करते। महसूस करें, तो ये इस तरह उन्होंने वहाँ पे टाइम जो है गुजारा। कभी हम जाएं तो हम जहाँ के जाने वाले तो इतनी सहूलतें देखते हैं कि लक्ष्री देखते हैं, आरामदेह गद्दे हों, बेड आरामदेह हो, खाना बहुत अच्छा हो, और बिल्कुल हरम के वो बिल्कुल सीढ़ियाँ भी उसके करीब ही हों, यानी कि हमें चलना भी ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, सब आरामदेही हो। तो उनको उनका तकलीफ जाके हज के दौरान उनकी तकलीफ याद हो कि उन्होंने क्या सही थी वो। और जो छोड़ के जा रहे हैं अकलौता बेटा, जो 100 साल के तकरीबन 80 साल की उम्र थी जब इसहाक की खुशखबरी आई, कोई रवायात में 100 साल के भी आते हैं। तो इस्माइल उनसे पहले पैदा हुए। तो किस बाप का दिल दिल चाहता है कि वो अपनी अकलौती औलाद को छोड़ जाए, वो भी इतने प्यार से मिली हुई बुढ़ापे की औलाद, तरस तरस के मिली हुई, है ਉਹਨਾਂ ना। ਦੇ ਹਾਂਜੀ तो अल्लाह के हुक्म पर जब भी अल्लाह का हुक्म होता, इस इब्राहिम क्या कहते थे, फौरन फौरन हाजिर, फौरन ही वो काम कर देते थे। हम्म, तो जी इसको वाकई याद होना चाहिए इस फैमिली को। और औलादे यकूब, वो सब क्या थे, यहूदी, यहूद कहते हैं यहूदी थे, और नसारा कहते हैं ईसाई थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे पूछें, उनसे कहें कि क्या तुम कहते हो, जनी के ये, या तुम ये बात कहते हो हमें बता रहे हो कि वो ईसाई थे या यहूदी थे। कुल, अल्लाह ताला खुद ही फिर फरमाते हैं उन्हें कह दें, तुम, क्या तुम आलम ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या अल्लाह, आ अम या। तो अब आगे मिलाने के लिए जेर दी गई है, वैसे जो अम था ये क्या था, मीम के ऊपर जज़म थी, तो जब आगे मिलाया तो आगे मिलाने के लिए अमिल्ला जेर आ गई। ये इसको कहते हैं आरजी जेर है ये, ठीक है, आरजी तौर पर डाली गई। वाह, और मन कौन अजलमु, बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम जो है ना, जैसे अकबरू हम कहते हैं सबसे बड़ा, तो अजलम सबसे बड़ा जालिम, मिन से मन जो कतमा छुपाए, शहादतन गवाही को। शहादत हम भी इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई शहीद हो जाए, तो दूसरा शहादत इस्तेमाल करते हैं गवाही को, दो इसके मतलब पाए जाते हैं। इन्ना,
اور حاضر میں بھی، حاضر کو بھی کہتے ہیں حاضر جب جو وہاں پہ پریزنٹ موجود ہے، ان دا پاس ہو اس کے، ہو کی ضمیر جو ہے یہ پیچھے لوٹ رہی ہے، من سے اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کی طرف سے، کہاں ترجمہ کس کا ہے؟ زیر کا، زیر کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ کی جانب سے، کی طرف سے، اللہ کی طرف، من ہے طرف، من سے بھی ہوتا ہے نا، اللہ سے، جا اللہ کی طرف سے، تو کی کا مطلب جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ زیر سے، اللہ کے نام کے آخری حرف جو ہے ہا، اس کے نیچے زیر جو ہے وہ بتا رہی ہے، وا اور ما نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ بغافلین غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم یہ بات کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے، جائز تھے، کہہ دو انہیں، بتا، جانتے ہو جا اللہ، اللہ کو پتا ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا، ان کس ریلیجن پر تھے، چاہ تمہیں پتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسائیت آئی اور یہودیت آئی، ایون یعقوب علیہ السلام کے بھی بہت بعد میں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے کون تھے؟ یوسف، یوسف کی اولادوں میں سے کون تھے؟ آگے پھر سارے اور بھی انبیاء، اور موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ تو یہ کہاں عیسائیت اور یہودیت تو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، یہ نام اللہ نے نہیں دیا ان کو، اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے خود یہ نام رکھے، اور پھر خود ہی رکھ کے کہنے کیا لگے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی اسی دین کے فالوور تھے، تو اصل میں انہوں نے تو دین بدل لیا تھا، دین تو اصل میں انہی کا تھا، پیچھے سے چلا آ رہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدل لیا تھا، تو اس بدلے ہوئے کو بھی انہی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بتا دیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ کون سی گواہیاں تھیں؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی تھی، ان کی کتابوں میں ان کے رسولوں نے بتایا کہ ایک نبی آخری آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اس کی اتباع کرنا، اس کی شریعت کو لینا، ماننا اس کی بات، اس کے ساتھ ہو جانا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ ان کی کتابوں میں بھی آ چکی تھی ہر طرح کی، جہاں تک کہ صحابہ کرام، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں وہ مسجد اقصیٰ کی چابیاں ملیں گی، یعنی کہ قبضہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ساتھی ہوں گے جن کو ملے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے چھپا لیا۔ کیوں چھپایا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولادوں میں سے نہیں آئے، کیونکہ آخری نبی، ان کو کیا امید تھی؟ سارے انبیاء ہماری نسلوں سے آئے ہیں، یعنی کہ اسحاق کے بعد اب جو آخری نبی ہے اس کی امید کیا لگائے ہوئے تھے؟ وہ بھی ہماری نسلوں سے ہی آئے گا۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ کن علاقوں میں، کن خاندانوں میں پیدا ہو گئے، پھر بھی اس کو چھپاتے تھے یہ، اور امید کرتے تھے کہ ان کی نسلوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہے ہیں کہ جی غلط بات کہہ رہے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب علم کس کو ہے؟ تو اور گواہی جو ہے، پہلے گواہی لے کہ کسی کے پاس کوئی گواہی موجود ہو تو اسے چھپانا چاہیے۔ گواہی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی نے کسی کو قتل کرتے دیکھا، ਹਾਂ ਬਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਏਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ, ان کے عالموں نے ਛਪਾਤੀਆਂ, چھپانی تھی۔ ਨਿਕਾਲ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। تو یہ پھر نہیں انہوں نے کیا نا، کیونکہ ان ਨਹੀਂ کے کیا عالم جو بالکل۔ تھے صرف دین کو عالم ہی آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟
हाँ जी। क्या हर बंदा ही इस किताब के इल्म को जानता है, कुरान के? क्या उसे समझ है कि कुरान का हर हुक्म क्या है, हर किस चीज से मना किया गया है, कुरान की कौन कौन सी आयत है? नहीं पता ना। आलम ही जानते हैं ना पूरा इल्म। हाँ जी, जैसे पूरा इल्म जैसे तो हमें अल्लाह की जात ही जानती जो है, लेकिन बताया गया था और कुछ हम सुन रहे हैं अब इस हम्म दफ़ा। हाँ जी। उनकी तो यही हमारी गवाही होगी दूसरी उम्मतों पर। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमें कुरान बता रहा है। फिर हमारी गवाही इसीलिए ली जाएगी क्योंकि हमारी किताब में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब पैगंबर आए, उनकी कौमों ने, पैगंबरों ने क्या उनको दिया पैगाम, और उनकी कौमों ने आगे से क्या जवाब दिया। क्योंकि कौमें कहेंगी ना हमारी तरफ तो कोई भी नहीं आया, जुटला देंगी ना, कोई भी नहीं आया, हम कैसे अच्छे लोग होते, कैसे नेक होते, हमारी तरफ तो कोई आया ही नहीं। तो अल्लाह ताला फिर पैगंबरों को पूछेंगे जो उनकी तरफ गए थे। अब पैगंबर जो हैं वो कहेंगे कि हमने इनको पहुंचा दिया, और कौम कहेगी नहीं पहुंचाया। तो फिर ये है कि उनको गवाही मांगी जाएगी कि आप, पैगंबरों को पूछा जाएगा कि आप किसकी गवाही देते हैं, किसको गवाह लाएंगे जो कि ये गवाही दे कि आपने पहुंचा दिया था, यानी आपका विटनेस कौन है। तो वो कहेंगे कि उम्मत मुसलमा, उम्मत मुसलमा हमारी विटनेस है कि हमने इन तक अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह भी तो विटनेस ही है ना। लेकिन जब कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जज को सारा ही पता होता है बात का, लेकिन वो शहादतों की बिना पर वो देता है फैसला। ऐसे ही है ना, जब लोग गवाही दे रहे होते हैं उसके सामने। तो अल्लाह सुबहाना ताला को पता है, अल्लाह की किताब में लिखा गया है, फिर भी अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। अल्लाह बुलाएंगे और वो फिर गवाही हम देंगे कि ए अल्लाह, इन्होंने अपनी कौमों को पूरा पूरा पैगाम पहुंचा दिया और इनकी कौमों ने आगे से ये किया इनका हाल। तो जब हम खुद ही नहीं जानते होंगे तो गवाही क्या देंगे? हमें तो खुद ही अपनी किताब का अगर नहीं पता होगा तो हमें गवाही के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि हम गवाही देंगे? तो कुछ लोगों का काम नहीं है कि वो गवाही देंगे। सारी उम्मते मुसलमा का ये काम है कि वो आगे इस दीन को पहुंचाए, और उनकी सभी की गवाही है। लेकिन जो वो गवाही के लिए तो फिर वो ही चुना जाता है जो उसमें से लायक हो उसके। तो अल्लाह ताला हमें भी उस लायक कर दे। आमीन। हम समझे, अमल करें और आगे पहुंचाने वाले हो जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंदाहू, उसके पास, मिन अल्लाह ही, अल्लाह ताला की तरफ से। ये किस के पास? वो जो आदमी है, वो जो इंसान है, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जिसके पास गवाही हो और उसको अल्लाह ताला की तरफ से गवाही। अल्लाह ताला की तरफ से गवाही कैसी? किताबों का इल्म, किताबों में इल्म, और शरीयतों में पैगंबरों ने बताया, तो वो खास कर किताबों का, क्योंकि पैगंबरों के बाद आने वाले जो यहूद व नसारा हैं वो तो किताबों से ही बताएंगे ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बाद तो नहीं पैदा हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के या मूसा अलैहिस्सलाम के। बहुत अरसा लगा ना, बहुत 100 सालों का फ़र्क है। तो इसलिए हज़रत मूसा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तो हज़ार से भी ऊपर साल का फ़र्क है। तो हज़रत ईसा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन यानी 500 से ऊपर, 500 से ऊपर साल का फ़र्क है, उससे भी ज़्यादा, वल्लाहु आलम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वा मा, और नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला, अब अल्लाह आया है तो काम करने वाला, यानी गाफिल नहीं है अल्लाह ताला, फाइल है अल्लाह, ठीक है। बी गाफिलीन, गाफिल अम्मा, उससे जो, अन से मा जो, यानी अम्मा इकट्ठा करके लिख दिया गया, तो इसका ऐसे होता है तर्जमा अलहदा, तामालून, जो तुम अमल करते हो। अल्लाह से गाफिल नहीं है। अल्लाह को धोखा दे रहे हो जिसको सभी पता है और लिखा गया है, जिसने तो तुम्हारे पैदा होने से पहले 50,000 साल पहले कलम बनाई और कलम से लिखवा के रजिस्टर बंद कर दिया गया। कलमें सूख गई, रजिस्टर बंद करके लोहे महफूज में महफूज कर लिया गया, जिसमें सब कुछ लिखा गया।
और किसके इल्म पर था? अल्लाह के इल्म का, जो अल्लाह ताला को एडवांस में पता है। उस इल्म के बिना पर था कि कौन सा इंसान किस वक्त क्या करेगा और क्या कहेगा और क्या खाएगा और क्या पिएगा और कहाँ जाएगा और क्या कुछ करेगा वहां जाके, सब कुछ ही था। आगे है तिल का वो उम्मतुन, एक उम्मत थी। अब उम्मतुन आया है तो एक के लिए, जब तनवीन आती है किसी हरफ के ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश, तो क्या वो बात बता रही होती है कि एक के मानी वाहिद है, एक उम्मत थी। कद यकीनन, खलत गुजर चुकी, कद यकीनन खलत गुजर चुकी, लहा उसके लिए, क्योंकि ये देखिए खलत आया है, ता भी जज्म वाली है। जज्म वाली ता किसकी अलामत होती है? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये मुअन्नस की अलामत होती है, औरतों के लिए आती है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं औरत, कहते हैं औरत, औरत के आखिर में क्या आता है? ता, जज्म वाली, उर्दू में भी ता। तो ऐसे ही हम इसको भी खलत मुअन्नस लेते हैं, क्योंकि ता जज्म वाली आई हुई है। तो उम्मतुन क्यों कहते, जो जज्म वाली ता पता क्यों आई है? क्योंकि जो उम्मतुन था ना, इसने आके सभी को बदल दिया। उम्मतुन की तनवीन जो ये ता मरबूता बता रही है, जो गोलता है इसको ता मरबूता कहते हैं, ये बता रही है कि ये जो लफ्ज उम्मत है ना, ये मुअन्नस है। अरबी में क्या है? ये मुअन्नस है। हमारे उर्दू में मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? जो उम्मत है हमारे उर्दू में भी मुअन्नस ही है। हम कहते हैं जमा है, हाँ जी। नहीं नहीं, उम्मत मैं बात करी, क्या ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? तो ये भी मुअन्नस है, उर्दू में भी मुअन्नस है, ठीक है, माइनस है, हाँ उम्मत। जी। तो हम कहते हैं ना कई उम्मतें गुजर गईं, हम ये नहीं कहते कई उम्मतें गुजर गए, नहीं कहते ना, क्योंकि हमारी जुबान भी हमें इजाजत नहीं देती है ऐसा कहने की। तो जहां पे भी तिल का, इसीलिए इशारा भी इसका जी आया है, जाली का नहीं आया, दूर का इशारा आया है, क्योंकि उम्मत गुजर गई है ना, तो दूर ही है, जो हमारे सामने नहीं है। तो तिल का आया है, तो तिल का जो आता है ये मुअन्नस के लिए आता है, ठीक है, इशारा मुअन्नस के लिए तिल का आता है, और उसी वजह से खालत आया है, ता जज्म वाली, औरत की समझ लें, औरत की ता, हमें उर्दू उर्दू में जल्दी पता चल जाएगा। लहा किस, इसके लिए, उसके लिए, ला के लिए, हा उस। अब हु नहीं आया, क्यों? क्योंकि उम्मत क्या है? मुअन्नस है, तो उसका इशारा भी वो क्या होगा? हा जो है मुअन्नस का इशारा हा है, होता है, हु नहीं होता। ये अल्लाहु ये नहीं है, ये तो जहाँ पे कहीं हु, मुझे जे इंदाहु, ये इसकी मुअन्नस, ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। माँ जो कसबत, उसने कमाया, अब इसीलिए जज़म आई है, ता जज़म वाली, कसबा नहीं आया, कसबत आया है कि उसने कमाया, यानी कि जी उस उम्मत मुअन्नस ने जो किया काम, वो काम का नाम हो गया। वाला कद, वाला कुम, और तुम्हारे, वा और ला के लिए, कुम तुम्हारा, तुम जो है, ये तुम जो है ये मुज़क्कर है, क्योंकि तुम्हारे लिए वाला कुम आया है, वाला कुन्ना नहीं आया, औरतों को नहीं मुखातब किया जा रहा। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ पे मुज़क्कर को ला रहे हैं, लेकिन जब मुज़क्कर आए ना, कुम तुम आए, जो सारे इनमें हु भी आए तो इसमें मुअन्नस पाई जाती है, ठीक है, इसमें मुअन्नस पाई जाती है। लेकिन जब जे आए, जो खालस औरतों के लिए ही होता है, जे आए तो इसमें, अब वल्लाहु आलम, हम सोचते हैं कि औरत भी तो मर्द से ही बनी थी ना, तो जब मर्द का सीगा आता है, यानी मुज़क्कर का सीगा आता है, तो उसमें ही सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब मुअन्नस का अलहदा करके आता है, तो वो मुज़क्कर साथ में नहीं लाती, उसका मुज़क्कर अलहदा ही होता है। वाला कुम यानी तुम सब, औरतें और मर्द सब,
तुम्हारे लिए है माँ जो कसब तुमने कमाया, यानी जो तुम कमाई करोगे, तुम अमाल कमाओगे तुम्हारे लिए, और जो उन्होंने अमाल कमाए वो उनके लिए। वाह और ला नहीं। हम क्या कहते हैं, ये पीछे भी गुजर चुकी आयत और मैंने बताया था, हम क्या कहते हैं कि एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो सारी फैमिली में, क्या होगा? 7 पुश्तें बख्शी जाएंगी। तो अगर अल्लाह ताला ने इजाजत ही ना दी उस हाफिज कुरान को कि इनकी गवाही दे, वो इस काबिल ही ना हुए, खानदान वाले सारे खानदान वाले कि उनकी कोई सिफारिश करे, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर एक गुमान रह गया ना। तो वो तो फिर जो वो लोग खानदान भी कह सकते थे, क्रैश मक्का भी कह सकते थे, क्योंकि हमारे खानदान में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम दीन को ना भी माने तो हम बख्शाए हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हिदायत दे। जो हमारे काम है वो हमारे आबाओ अजदाद यानी कि उनके जो काम है अच्छे किए हुए, अगर वो नेक थे, उन्होंने कोई बड़े बड़े काम कर भी दिए, किसी ने मदरसा बना दिया, स्कूल बना दिया, किसी ने बड़े बड़े काम कर दिए, तो हम कहें क्योंकि हम उनकी औलाद हैं तो हमें भी वो मिल जाएगा हिस्सा उनका। कैसे मिल जाएगा? हर बंदे से उसके बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा, हर राई से उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा, और हर बंदे से उसके अपने अमाल के बारे में पूछा जाएगा। वाला और ना तुस आलूना, तू का क्या मतलब होता है? तुम, वाव नून की वजह से तुम हो गया। वैसे ये जब शुरू में ता आती है तो मैंने बताया था आतईन, हरूफ आतईन 4 हरूफ, हमजा यानी अलिफ के ऊपर जबर, और ता, और क्या है या, और नून। जब ये शुरू में इनमें से कोई आगे, जैसे या मालून आया है, या आई है इसमें से, ता मालून जहाँ पे ता आई है, ठीक है, पता चल रहा है जहाँ पे ये आई हुए हैं, ठीक है। तो ये जब शुरू में आते हैं किसी लफ्ज के, तो ये इसको जा ये मदारे में ले जाते हैं, फेल मदारे में ले जाते हैं, यानी कि जमाना बदल जाता है इनका। क्या होता है, जहाँ तो हो रहा होता है वो काम, जा होने वाला होता है, यानी जा होगा, जा हो रहा है। तो अब होगा जहाँ पे हम कहते हैं तुम सवाल करते हो या किए जाओगे, तो जहाँ पे तर्जमा क्या होगा, तुमसे सवाल किया जाएगा, कब? क्यामत के दिन, आखिरत में। अन से मा, जो उनके बारे में, कानू थे वो, या मालून करते, या का मतलब वो होता है, ठीक है, या मालून वो अमल करते, कानू थे। अब काना था, कानू थे, काना वाहिद है और कानू जमा है, ठीक है, काना वाहिद, कानू जमा, वाव अलिफ ने आके जमा बना दिया, और काना अलिफ के साथ आ जाए तो क्या मतलब होता है? 2, वो 2 थे, ठीक है। काना, अगर जे नून के आगे अलिफ आ जाए और नून के ऊपर जबर आ जाए तो वाव अलिफ को हटा दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है वो 2। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे ख़त्म हुआ सिपारा, तो देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो एक उम्मत थी यकीनन गुजर चुकी, इसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो अमल किया करते थे। कई दफ़ा होता है कि इंसान सोचता है कि हमारे भी फ़लाँ फ़लाँ तो ऐसे अमल करते थे, दुनिया से चले गए, अब उनका क्या बनेगा? तो अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि जो वो कर गए उनका है, जो तुम करोगे वो तुम्हारा है, जो करेगा उसी का है। तो हम रूट वर्ड की तरफ आते हैं, देखते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी। फ़ाइन आमनू का रूट वर्ड क्या होगा? वाव नून को निकाल, वाव अलिफ को निकाल दें, क्या रह जाएगा? अलिफ मीम नून, आमन, अमन में आना। बिमिसली आमना, वो अमल में आया, तो आमनु वो अमन में, आमनु वो सब अमन में आए, ईमान लाए, यानी अमन में आना क्या है? ईमान लाना, अमन में ही आना है। बिमिसली मिसल, बा को निकाल दे, मीम सा लाम, मिसल मानिंद, की तरह, उस जैसी। आमन तुम, आमना वही है। फ़क़द, फ़क़द इह्तदौ, हदायत
हा दाल या, ये वाव जो है ये नहीं है असल में, ये वाव तो जमा की है। इस वाव ने जब आई तो जो इसकी असली असली वाव थी उसको परे कर दिया, तो ये मदलीन था एक्चुअली। हदा, हदा, तो क्या इसको वो हदायत पा गए, है ना। वाइन तवल्लऊ, तवल्लऊ वल्लऊ क्या है, वो फिर जाएं, वाओ लाम वाओ वल्लऊ। फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, शीन काफ काफ शक, मुखालफत, मुखालफत में होना, शीन काफ काफ, अलिफ को निकाल दे। फसयकफीकहुमुल्लाह, फसा, फा चनाचे पास, सा अनकरीब जल्दी आने वाले ज़बान, जहाँ सा होता है जहाँ सौफा होता है। जब सौफा आता है तो वो अलहदा आता है, वो जुड़ के नहीं आता। जब सा आता है तो वो फेल के शुरू में आता है, यानी कि जो काम होना होता है उसके शुरू में आता है, तो क्या करता है उसको यानी कि उसके साथ जुड़ के आता है, सीन जो है, सीन और सौफा, और जल्द अनकरीब आने वाले ज़माने की खबर दे रहा होता है। यकफी, या वो काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी काफ़ी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम उनके मुकाबले में चनाचे अनकरीब काफ़ी हो जाएगा आपको उनसे, कौन, अल्लाहू, अल्लाह ताला। अब अल्लाहू क्योंकि अल्लाह काफ़ी होगा ना, अल्लाह ने फेल वो अल्लाह ने करना, तो इसलिए वाह और हुआ, और ये ज़मीर जो है ये परे होके आई है, ये जुड़ के नहीं आई, इसको कहते हैं मुनफसिल, फासले पर, यानी कि लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई ना, अस्समी के साथ जुड़ी हुई तो नहीं है, जिन्हें हुआ नहीं ना जुड़ी हुई, क्योंकि वाव वैसे भी आपने बाद में जुड़ने नहीं देता किसी को भी। अस्समी सब कुछ सुनने वाला, अल अलीम सब कुछ जानने वाला। अस्समी का ये काफ़ी का नहीं हमने किया, क्या था, काफ फा और या, बाकी सब निकाल दें, काफ फा और या, ये इसका रूट वर्ड होगा। समी में देखें क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है आपको, और या सीन मीम, और वो तो समी हो जाएगा, समी है, सीन मीम और आइन, समा सुनना, समात। अल अलीम का क्या रूट वर्ड होगा, अलिफ लाम को निकाल दें और बीच में से या को निकाल दें, ये हरूफे मद है, अलिफ लाम आइन लाम और मीम, सिबगातन, सिबगाता। अब ता को निकाल दें तो क्या रह गया, सिबगा, सी स्वाद बा और गईन रह गया। आगे है अहसन का, अलिफ को हमजा को निकाल दें, अलहदा कर दें तो, और हासीन नून हुसन रह गया, सिबगातन, सिबगा में सिबगा ही है, ता को निकाल दें तो वही है, सही है। नहनु आबिदून, वाव नून निकाल दें तो आबद हो गया, बार बार करने वाला, इबादत करने वाला। हमने कहा नहीं, आप आबादा, अगर हम दो तीनों ज़बरें इसके ऊपर लगी हों तो हम कहते उसने इबादत की, लेकिन आबिदून वो इबादत करने वाले हैं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, कुल, ये कुल का जो है ये किसी वजह से चेंज हो गया हुआ है, कुल काफ वाउलाम कब वाला था तो कुल हो गया। तो हाजूनना, इस क्या तू हा, तुम सब, हाजत क्या है, हुज्जत, ना हमसे, क्या तुम झगड़ा करते हो, क्या तुम हुज्जत करते हो हमसे, तो हा जीम जीम है इसका, हज्जज, हा जीम जीम। रब्बुकुम बाबा, क्योंकि बा के अंदर दो बा हैं। आमालुना में क्या है, हमजा निकाल दें और अलिफ निकाल दें जो मीम के आगे है, और
बाकी रह जाएगा आइन मीम और लाम अमल। और आमालुकुम सेम। मुखलिसूना के करें तो क्या करेंगे आप? मुखलिसूना मुखलिसूना खालाम साद खालस है ना, खालस किया हुआ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान है। अम तकूलूना कूल में तकूलू में जहाँ पे काफ वाव और लाम था तो कव्वला से कूल बन गया। इन्ना बेशक यकीनन। आगे है याकूब मतनी असबात में देखें सीन बा और ता, सीन बा और ता सबत सबात क्या औलाद दी, सबत की जमा सबात। नसारा का यही है नून सादरा नसारा, मदद करना होता है ना, मदद करने वाली। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी ना, उनकी पुकार पर लब्बैक कहा था, तो इसलिए मददगार उनके, फिर उनकी मदद भी की उन्होंने। आलम ज्यादा जानता है, रूट वर्ड क्या होगा आलम का? आइन लाम और मी। आगे है अजलम, हाँ जी अजलम। इसमें तो आ निकाल दे, बाकी सारा रूट वर्ड है, ठीक है। कतमा में यही है, और शहादा में शीन हा और दाल है अलिफ निकाल दें तो इंदा का इंदा ही है। गाफिलिन गैन पा लाम। आगे तामलूना में हम कर चुके, उम्मतुन में करें हमजा मीम मीम उम्मम। कद खलत, खलत का क्या है? खा लाम ता, जो याद रखेंगे ता इसकी रूट की नहीं है, इसमें ता की जगह पे था वाव, इसने ता ने आके वाव को परे हटा दिया और खुद आके बैठ गई। खालत खालाऊ था, खा लाम और वाव था खलाऊ। लहा मा कसबत, ये वही काफ सीन बा। मा कसबतुम वही है रूट वर्ड। तुसालूना में देखे ता निकाल दे, वाव नून निकाल दे, तो बीच में क्या रह गया? लाम साला, सवाल करना। आगे बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रह गया है, नहीं रह गया, मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारा कबूल करे। तो ये आज हमने क्या सीखा? औरत की ता कद खलत में किस वजह से? तामरबूता की वजह से जो थी, क्योंकि तामरबूता जो ही आए और तनवीन आए, जस हर्फ पर तनवीन आ जाती है लफ्ज पर आखिर में, वो मुअन्नस की हो जाती है, और उसका इशारा भी फिर मुअन्नस का आया, और ता जी मुअन्नस की। इंशाल्लाह ता और भी होती है, ये तो ये वाहिद मुअन्नस है ना, वाहिद गायब मुअन्नस गायब है, लेकिन इसकी जमा क्या होगी? इसकी इसकी ता की जमा क्या होगी? कसबत की जमा क्या होगी? वो तो मर्दों के लिए है ना। अच्छा कसा औरतों के लिए अगर हो तो क्या होगी? खलात कसबतुन्ना। वो खवातीन को लेना, फिर हम लेते हैं उर्दू में खवातीन का नून, खवातीन का नून आखिर में है ना, क्योंकि औरतों की जमा खवातीन है ना, तो खातून की जमा खवातीन है। तो क्या है, खातून से खवातीन, और तो उसका नून अगर हम इधर लगाए ना, तो वही अरबी में भी नून बनता है, वो भी कहते हैं नून निसा। उसको क्या कहते हैं? नून निसा, यानी औरतों का नून। निसा औरतों का कहते हैं ना, नून निसा औरतों का नून। ये अलामात के जरिए जो हम कर रहे हैं ना, मंडे एंड थर्सडे की क्लास, उसमें से काफ़ी ये अलामतें आ रही हैं, तो
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे आप लोगों को ज़्यादा पता चल जाता है, थोड़ा तो पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या हो रहा है। वाव नून आ जाए तो जमा का है, अलिफ नून आ जाए तो वो भी जमा का है, क्योंकि ये वाव नून फाइल के साथ आता है, यानी जो काम कर रहा होता है, डूअर जो होता है उसके साथ वाव नून आता है रफ़ा की हालत में। लेकिन जो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो उसके ऊपर ज़बर आती है। हम कहते हैं कि अल्लाह के नाम के आखिरी हर्फ पर पेश होगी, तो यानी कि इस्म के आखिरी हर्फ पर पेश होगी, तो हम कहते हैं कि काम किसने किया है, उस इस्म ने किया है, यानी डूअर वो है। लेकिन अगर इस्म के नाम के आखिरी हर्फ पर ज़बर आ जाए तो उस पर काम हुआ है, काम किसी और ने किया है, उस पर किया है, इसीलिए का के की कू हम लगाते हैं। और अगर उसके ज़ेर आ जाए उसके आखिरी हर्फ पर तो क्या होता है फिर, उसकी मलकियत है वो चीज़, मेरा टेबल है, मेरा कंप्यूटर है, वो फिर मलकियत में आ जाता है उसकी। तो ये हमने अलामात के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह सीखा, जो क्या इनके ज़रिए मैंने ये देखा है कि भूलता नहीं है फिर आपको, क्योंकि आपको एक तरफ से ला के उसको समझा दी गई ये बात। वैसे आप जब ग्रामर में जाते हैं इतने रट्टे लगाते हैं और फिर रट्टे लगा लगा के वो सब भूल जाते हैं रट्टे, तो ऐसे भूलता नहीं। अब ख़वातीन के नून से नून निसा है, यानी कि जमा में औरतों का, और औरत के ता से वाहिद औरत की पहचान है, यानी कि एक औरत की। औरत को क्या कहते हैं, इमरातुन, क्या है, इमरातुन औरत। और अन्निसा औरतें, यानी कि बिल्कुल बदल गई, इसकी जमा बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, इसकी जमा बिल्कुल टूट गई, ब्रोकन जमा। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अमल की तौफीक दे। क्या समझा आज हमने, क्या लिया है, क्या लिया है, कुछ कुछ पता चला, कुछ नया पता चला, कुछ नया तो नहीं हम कह सकते, सदियों से आ रहा है लिखा हुआ तफसीरों में, एक याद दहानी है ना, याद दोबारा आ जाता है, इकट्ठे बैठ के याद आ जाता है, सीखना आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है, बस एक दूसरे से बंदा सीखता है। क्योंकि जब कोई बोलता है अपने एक्सपीरियंस बताता है, कभी कोई कोई बताता नहीं है, बताएं आप, कोई कोई है आपने शेयर करनी बात हो। जैसे तस्नीम बहन बता रही थी, जब वो गई तो उन्होंने क्या देखा वहां पे मस्जिद अक्सा में। तो शेयर करने से भी कई दफा दूसरों को फायदा हो जाता है ना। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। किसी ने कुछ पूछना, कुछ सवाल जवाब कोई, तो जल्दी से बाजी पूछ। पूछना कुछ नहीं, ये लंबा काफी हो गया आज, है ना। तो थर्सडे की क्लास कितने बजे से कितने दिन टाइम वो होती है मंडे की? टाइम यही है, लेकिन वो 1.5 घंटे की होती है। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वो होती है मंडे एंड थर्सडे, ठीक है जी। टाइमिंग वही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। रब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए मैं रश कर रही हूँ।